یہ تاریخ اسلام کا وہ اہم موڑ ہے جب ایک طرف ظلم و جبر کی تاریکی چھا رہی تھی اور دوسری طرف حق و صداقت کا چراغ روشن ہونے کو تھا۔ ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیائے فانی سے پردہ فرما گئے، اس لمحے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے تاریخ نے خلافت راشدہ کا نام دیا۔ یہ مبارک دور رمضان المبارک سن 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بعض مورخین حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کے دور خلافت کو بھی اسی عہد زرع میں شامل کرتے ہیں، اور پھر وہ المناک موڑ آیا جب خلافت ملوکیت میں ڈھل گئی۔ اس سنہرے دور کے بعد خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوا، جس کی بنیاد حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ انہوں نے 19 برس تک 64,65,000 مربع میل کے پھیلے ہوئے وسیع خطے پر حکومت کی۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے فرزند یزید ابن معاویہ نے اقتدار سنبھالا اور لوگوں سے اپنی بیعت لی۔ اس وقت بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیات تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام شامل تھے۔ امام علی مقام اس وقت اپنے خاندان اہل بیت اطہار کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، جبکہ خلافت بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تھا۔ اقتدار میں آتے ہی یزید نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تمام شخصیات سے بیعت لے گا جنہوں نے اس کے والد کے عہد میں اسے اپنا امیر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا، جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی کہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زبردستی بیعت حاصل کی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے سرطن سے جدا کر دیے جائیں۔ اس کے بعد یزید کی جانب سے ایک اور خط آیا، جس میں اس خط کے جواب کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کا سر بھی بھیجنے کی صریح تاکید کی گئی تھی۔ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کے مشورے پر مذکورہ بالا شخصیات کو دارالامارہ میں طلب کیا گیا۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ وہاں تشریف لائے۔ ولید نے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر سنائی، پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے ولید سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں چھپ کر یزید کی بیعت کروں؟ میں سمجھتا ہوں تمہارا اصل مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے علال اعلان اس کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، ہاں یہی میری رائے ہے۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، پس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کر سکوں۔ ولید نے اگلے دن عصر کے وقت اپنے آدمیوں کو امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تاکہ جواب معلوم کیا جا سکے، مگر امام علیہ السلام نے 1 رات کی مزید مہلت طلب فرمائی، جسے ولید نے منظور کر لیا۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا ماحول اب پرسکون نہیں رہا، تو آپ نے اس شہر محبوب کو خیر باد کہنے کا عزم مصمم کر لیا۔ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے آپ علیہ السلام اتوار کی شب 28 رجب کو اور بعض روایات کے مطابق 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اطہار اور 84 جاں نثار اصحاب کے ساتھ مدینے سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بعض ماخذ کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے برادر بزرگوار امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی، نوافل ادا کیے اور وداع فرمایا، پھر صبح صادق کے وقت گھر واپس لوٹے۔ بعض دیگر ماخذ میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے 2 راتیں اپنے نانا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس پیدل چل کر گزاری۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے علاوہ آپ کے تقریباً تمام قریبی عزیز، فرزندان، بھائی، بہنیں، بھتیجے اور بھانجے ہم رکاب تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 وفادار ساتھی بھی اس قافلے میں شامل تھے،
जब आपके बरादर मोहतरम मोहम्मद बिन हनफिया को इस सफ़र की इत्तला मिली तो वो फ़ौरन हाजिर खिदमत हुए। इस मौके पर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के नाम एक तहरीरी वसीयतनामा लिखा, जिसमें इरशाद फरमाया कि मैं न खुद पसंदी के लिए निकला हूँ, न ऐशो तफरीह के लिए, और न ही फसाद व जुल्म मेरा मकसद है, बल्कि मैं सिर्फ अपने जद्द बुजुर्गवार की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मेरा इरादा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का है, और मैं अपने जद और पिदर बुजुर्गवार की सीरत तय्यबा पर कदम बेकदम चलूंगा। इसके बाद काफिला मदीने से रवाना होकर मक्का मुकर्रमा की सिमत गामजन हुआ। रास्ते में अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। जब उसने इमाम अलैहिस्सलाम के इरादे के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि अभी मक्के जाने का कस्द है, वहां पहुंचकर अल्लाह ताला से आइंदा के लिए खैर व आफियत की दुआ करूंगा। अब्दुल्ला बिन मुती ने अहले कूफा के बारे में खबरदार करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि मक्के ही में क़याम फरमाएं। बिलाखिर इमाम अलैहिस्सलाम 5 दिन की मसाफत तय करके 3 शाबान सने 60 हिजरी कमरी को मक्के मुकर्रमा पहुंच गए, जहां अहले मक्का और बैतुल्लाहिल हराम की ज़ियारत को आए हुए आज़मीन हज ने वालहाना इस्तकबाल किया। 3 शाबान से 8 ज़ुल्हिज्जा तक यानी 4 माह से ज़ायद अरसा आप मक्के मुकर्रमा में क़याम पजीर रहे और अहले मक्का सुबह शाम आपकी बारगाह से फैज़याब होते रहे। इधर जब अहले कूफा को ये खबर मिली कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए हैं और इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया है, तो वो सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई के घर पर जमा हुए और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक ख़त रवाना किया, जिसमें उन्हें कूफे आने की दावत दी गई। इस खत को भेजे अभी 2 दिन भी न गुजरे थे कि कूफा वालों ने 150 मजीद खतूत तहरीर किए, जिनमें से हर एक पर कम से कम 1 से 4 अफराद के दस्तखत सब्त थे। फिर 2 दिन बाद और खतूत रवाना किए गए। इन तमाम खतूत में इमाम अलैहिस्सलाम को कूफे आने की इल्तिजा की गई थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने इन खतूत का जवाब देने में ताख़ीर फरमाई, यहाँ तक कि इनकी तादाद बेशुमार हो गई। तब आपने एक ख़त तहरीर फरमाया कि मैं अपने ख़ानदान के सबसे काबिल एतमाद फ़र्जंद को तुम्हारी तरफ रवाना कर रहा हूँ, ताकि वो वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर मुझे आगाह करे, और अगर उसने मुझे ये इत्मीनान दिलाया कि तुम वाकई वही लोग हो जिन्होंने ये खतूत लिखे हैं, तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इमाम वही होता है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदलो इंसाफ कायम करे, दीन हक पर रासिख अल यकीन हो और अपनी ज़ात को यकसर अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दे। इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम को अपना ख़त इनायत फरमाया और उन्हें कूफे रवाना किया, ताकि वहाँ के हालात का बनज़र गायर जायज़ा लेकर आपको इत्तला दें। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान को खुफिया तौर पर मक्का मुकर्रमा से निकले और 5 शव्वाल को कूफे पहुंचकर मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी के घर क़याम पजीर हुए। आपकी आमद की खबर फैलते ही अहले कूफा जौक दर जौक आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम उन्हें इमाम अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर सुनाते और उनसे इमाम आली मकाम की बैत लेते रहे। यूं 12,000, 18,000 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 30,000 से भी ज़ायद अफराद ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत की और साथ देने का पुख्ता अहद किया। इस मौके पर हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल अलैहिस्सलाम ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त इरसाल किया, जिसमें बैत करने वालों की कसीर तादाद का तस्करा करते हुए आपको कूफे तशरीफ़ लाने का मशवरा दिया। जब यजीद इब्न मुआविया को अहले कूफा की बैत और उस वक्त के गवर्नर कूफा नौमान बिन बशैर के नरम रवैये की इत्तला मिली, तो उसने बसरा के गवर्नर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मलून को कूफे की गवर्नरी भी सौंप दी। इब्न ज़ियाद कूफे पहुंचते ही बैत करने वालों की तलाश और कबाइली सरदारों को धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि इसके कारिंदों के खौफ व हरास के सबब लोग आहिस्ता आहिस्ता हज़रत मुस्लिम बिन अक़ैल से किनारा कश होते गए, यहाँ तक कि रात होते होते आप बिल्कुल तन्हा रह गए और कोई पनाहगाह भी मयस्सर न रही। बिल आखिर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मलून की फ़ौज से मर्दाना वार लड़ने के बाद मोहम्मद बिन अशअस के अमान के वादे पर हथियार रख दिए।
और उन्हें गिरफ्तार करके महल में लाया गया। मगर इब्न ज़ियाद मलून ने इस अमान नामे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम को शहीद करने का ज़ालिमाना हुक्म सादिर कर दिया। ये वो अलमनाक लम्हा था जब हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम अपने चचाज़ाद भाई इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दे चुके थे कि कूफे के हालात साज़गार हैं, लोग आपकी बैत कर रहे हैं और बैत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मगर फिर अचानक यजीद इब्न मुआविया मलून ने हालात यकसर पलट दिए। नौमान बिन बशैर को माजूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून को कूफे का हाकिम बना दिया गया, जिसने आते ही गिरफ्तारियां, कत्ल व गारत और खौफ व दहशत का बाजार गर्म कर दिया। उसने ऐलान किया कि जो लोग हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील से वफादारी तोड़ लेंगे उन्हें अमान दी जाएगी, और हर महल्ले के सरदार को अपने इलाके की अमन व अमान का जिम्मेदार ठहराते हुए आपकी तलाश शुरू कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम इस कड़े वक्त में एक मुहिब्ब अहले बैत हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने हज़रत हानी बिन उर्वा को तलब किया और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को सुपुर्द करने का हुक्म दिया। मगर हज़रत हानी बिन उर्वा ने यह नंगो आर वाला काम करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कूफे में अफवाह फैल गई कि हज़रत हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम ने अपने 18,000 हमनवाओं के साथ इब्न ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया, जबकि उस वक्त इब्न ज़ियाद के पास महज 50 अफराद मौजूद थे। चुनाचे उसने चालाकी से सरदारों के जरिए लोगों को मुंतशिर करने में कामयाबी हासिल कर ली, यहाँ तक कि आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 30 अफराद बाकी रह गए और मजबूरन आपने एक बूढ़ी खातून के घर में पनाह ली। मगर उस बूढ़ी खातून के बेटे ने इनाम के लालच में खुद जाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून को इत्तला दे दी। इत्तला मिलते ही इब्न ज़ियाद ने इस मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम अकेले दादे शुजात देते रहे, मगर जब ज़ख्मों की ताब ना रही तो मोहम्मद बिन अशअस ने अमान का वादा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब आपको इब्न ज़ियाद मलून के सामने पेश किया गया तो उस बेवफा ने अपने ही अमान के वादे को पसे पुष्ट डालते हुए आपको शहीद करने का हुक्म दे दिया। शहादत से पहले हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन अशअस से कहा कि मेरी शहादत की खबर मेरे भाई इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना, और मेरी ये आखिरी गुजारिश भी उन तक पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज़ एतमाद न करें और जहां तक पहुंच चुके हों वहीं से वापस तशरीफ़ ले जाएं। मोहम्मद बिन अशअस ने अपना ये वादा पूरा किया और एक कासिद इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया। रावियान तारीख़ बयान करते हैं कि जब इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ये अंदोहनाक खबर मिली तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा और आबाद रख। आपको ये खबर मिल चुकी थी कि जिन्हें आपने अपना सफ़ीर बनाकर कूफे भेजा था, उन हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। बार बार खतूत लिखने वाले अहले कूफा इब्न ज़ियाद मलून के खौफ या लालच में आकर आपको बिल्कुल तन्हा छोड़ गए और कूफे की गलियों से नावाकिफ हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम को अमान का झूठा वादा देकर गिरफ्तार किया गया और फिर महल कूफा की छत से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया गया। अपने चचाजाद भाई की शहादत का गम और अहले कूफा की बेवफाई का कलक आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था, और मकसद इतना अजीम था कि पीछे हटना मुमकिन ही न था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र उमर बिन साद का मक्के का सिफारिशी ख़त लेकर इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अहले कूफा पर एतमाद करना मुनासिब नहीं, और उमर बिन साद ने यह वादा किया कि अगर आप मक्के वापस तशरीफ़ ले जाएं तो वो यजीद के साथ आपके मामलात तय करा देगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर इमाम आली मकाम ने इस मशवरे को कबूल करने से इनकार फरमा दिया और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सफ़र कूफा जारी रखने का इरादा रासिख फरमाया। मजबूरन हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र वापस हो गए,
मगर अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रहने दिया। रास्ते में मशहूर शायर फरजदक आपसे मिला और अर्ज किया, लोगों के दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। फ़ज़ाए इलाही आसमान से उतर चुकी हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। मगर इमाम आली मकाम ने इसके बावजूद अपना सफ़र जारी रखा। इब्न ज़ियाद मलून, जिसे इसीलिए कूफे का हाकिम बनाया गया था कि वो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में संगदिल समझा जाता था, जब उसे आपकी रवानगी की इत्तला मिली तो उसने अपने एक सिपह सालार इब्न नुमैर को आगे भेजा कि कादिसिया पहुंचकर मुकाबले की तैयारी करे। जब इमाम आली मकाम मकाम हाजिर पर पहुंचे तो अहले कूफा के नाम एक ख़त लिखकर हज़रत कैस के हाथ रवाना फरमाया, जिसमें अपनी आमद की इत्तला दी और उस मकसद का तज़करा फरमाया जिसके लिए अहले कूफा ने आपको बुलाया था। हज़रत कैस जब ये ख़त लेकर कादिसिया पहुंचे तो वहां इब्न ज़ियाद की फ़ौज का पहरा था। उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया गया। इब्न ज़ियाद मलून ने उन्हें हुक्म दिया कि क़स्र अमारत की छत पर चढ़कर इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ताला की हम्दो सना के बाद बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ अहले कूफा, हुसैन इब्न अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद और उस वक्त रोए ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर है। मैं तुम्हारी तरफ उनका भेजा हुआ कासिद हूं। वो मकाम हाजिर तक पहुंच चुके हैं, तुम उनका इस्तकबाल करो। उसके बाद उन्होंने इब्न ज़ियाद मलून को बुरा भला कहा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इब्न ज़ियाद मलून उनकी ये बेमिसाल जुरत और जांबाजी देखकर दंग रह गया और हुक्म दिया कि उन्हें क़स्र की बुलंदी से नीचे फेंक दिया जाए। ज़ालिमों ने उस नापाक हुक्म की तामील की और हज़रत कैस नीचे गिरकर जाम शहादत नोश फरमा गए। उधर इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कूफे की जानिब गामज़न थे कि रास्ते में एक पड़ाव पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुती से अचानक मुलाकात हो गई। वो इमाम अलैहिस्सलाम को देखते ही खड़े हो गए और अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? जब इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा बताया तो उन्होंने इल्तिजा की, ऐ इब्न रसूलुल्लाह, मैं आपको अल्लाह का, इज़्ज़त इस्लाम का, हुर्मत कुरैश का और हुर्मत अरब का वास्ता देता हूँ कि इस इरादे से बाज आ जाएं। अगर आपने बनु उमैया से उनका इक़्तिदार छीनना चाहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे, और अगर खुदा नखास्ता उन्होंने आपको शहीद कर दिया तो फिर रोए ज़मीन पर कोई ऐसा न रहेगा जिससे उन्हें खौफ हो। वो खुदा आपकी ज़ाते गिरामी के साथ इस्लाम, कुरैश और पूरे अरब की इज़्ज़त व नामूस वाबस्ता है। कूफा न जाएं और अपनी जान बनु उमैया के हवाले न करें। मगर इमाम आली मकाम ने अपना अज़्म मुसम्मम तब्दील न फरमाया और कूफे की जानिब रवाना हो गए। जब कूफे की ताज़ा खबरें मौसूल हुईं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हमराहियों को जमा फरमाकर इरशाद किया, अहले कूफा ने हमें धोखा दिया और हमारे हामी फिर गए। अब जिसका जी चाहे वापस हो जाए, मैं किसी को पाबंद नहीं करता। ये ऐलान सुनते ही रास्ते में शामिल होने वाले सब लोग चले गए और अब सिर्फ वही वफादार साथी बाकी रह गए जो मक्का मुकर्रमा से आपके हमरकाब थे। मकाम उज़ैब पर एक अरब मुल्ला और कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं कि वापस तशरीफ ले जाएं। आप नेज़ों, भालों और तलवारों की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुलाया है, अगर वो पहले अपने दुश्मनों को शहर से निकालकर फिर आपको बुलाते तो जाना दुरुस्त होता, मगर इस सूरत हाल में जाना मुनासिब नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो कह रहे हो वो मुझसे पोशीदा नहीं, मगर तकदीर इलाही पर कोई गालिब नहीं आ सकता। काफिला आगे बढ़ता रहा कि दोपहर के वक्त दूर से कुछ हरकत नजर आई। गौर करने पर मालूम हुआ कि घड़सवार फौज है। इमाम अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने एक पहाड़ी के करीब पड़ाव डालकर सफ़ें तरतीब दी। अभी तैयारी हो ही रही थी कि हज़रत हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में 1000 घड़सवारों का लश्कर सामने आकर ठहर गया। ये दस्ता इब्न नुमैर ने कादिसिया से रवाना किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि सब खूब सैराब हो जाओ और घोड़ों को भी पानी पिला दो। ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया
اور ہر کا پورا لشکر پیاسا کھڑا تھا۔ تب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے۔ امام الحسین بن علی علیہ السلام کے قافلے کے پاس وافر پانی موجود تھا۔ سب کو سیراب کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور تمام افراد نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے مخاطب ہو کر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے سامنے یہ بات واضح کرتا ہوں کہ میں نے یہاں آنے کا ارادہ اس وقت تک نہیں کیا تھا جب تک تمہارے کثیر خطوط اور قاصد میرے پاس نہ پہنچے، جن میں تم نے لکھا کہ ہمارا کوئی امام و امیر نہیں۔ آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ چنانچہ میں تمہاری دعوت پر آ گیا ہوں۔ اب اگر تم اپنے عہود پر قائم ہو تو میں کوفہ کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر تمہاری رائے بدل چکی ہے اور میرا آنا تمہیں ناپسند ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے۔ پھر آپ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید ریاحی سے فرمایا، کیا تم اپنی جماعت کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے عرض کیا، نہیں، ہم آپ علیہ السلام ہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے امام علی مقام امام الحسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی اور پھر اپنی اپنی جگہ واپس ہو گئے۔ بعد ازاں نماز عصر کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر جماعت کروائی اور سب شریک ہوئے۔ نماز عصر کے بعد آپ علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق تا حق پہچانو تو یہی اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ ہم اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں سے جو ناحق اس کے مدعی ہیں اور تم پر ظلم کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو چکے ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تم نے اپنے خطوط میں لکھی تھی تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور قاصدوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تب امام الحسین نے خطوط سے بھرے 2 تھیلے نکال کر ان کے سامنے ڈال دیے اور فرمایا، یہ وہی خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ان کے لکھنے والوں میں شامل نہیں، ہمیں تو امیر کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو نہ چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی صورت میں موت زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کے لیے تیاری کا حکم دیا، مگر حر نے راستہ روک لیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حر، تمہاری ماں تم پر روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے عرض کیا، بے خدا، اگر آپ علیہ السلام کے سوا کوئی اور میری ماں کا ذکر کرتا تو میں بھی جواب دیتا، لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے، ان کا ذکر بے ادبی سے نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے فرمایا، تو پھر بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام نے فرمایا، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا، میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک گفتگو جاری رہی۔ پھر حر نے کہا، مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں جب تک آپ علیہ السلام کو کوفہ نہ لے جاؤں، لہٰذا آپ علیہ السلام ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، تاکہ میں بھی اپنے امیر کو خط لکھوں اور آپ علیہ السلام بھی یزید یا ابن زیاد کو خط ارسال کریں، شاید اللہ کوئی صورت نکال دے۔ چنانچہ امام الحسین نے قادسیہ کے راستے سے ہٹ کر بائیں جانب سفر شروع کیا اور حر بھی اپنے لشکر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی دوران آپ نے ایک اور خطبہ دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کرے، اس کے عہد کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور بندگان خدا پر ظلم کرے، پھر بھی وہ شخص نہ قول سے اور نہ عمل سے اس کی مخالفت کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے بھی اسی ظالم کے ساتھ عذاب میں ڈالے۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ یزید اور اس کے کارندے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، رحمان کی اطاعت چھوڑ چکے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، حدود اللہ کو معطل کر دیا،
अब अगर तुम अपने इस अहद पर कायम रहोगे तो हिदायत पा जाओगे। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का बेटा हूँ। मेरी जान तुम्हारी जानों के साथ है और मेरे अहलो-अयाल तुम्हारे अहलो-अयाल के साथ हैं। तुम पर लाजिम है कि मेरी इत्तिबा करो। लेकिन अगर तुमने अपनी बैत तोड़ दी और अपने अहद से फिर गए तो ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम इससे पहले भी मेरे वालिद इमाम अली, मेरे भाई इमाम हसन और मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम बने अकील के साथ यही सुलूक कर चुके हो। हकीकत यह है कि वो शख्स सख्त धोखे में है जो तुम्हारे वादों पर एतबार करे। तुमने अपने हाथों अपनी आखिरत का हिस्सा ज़ाया कर लिया और अपने ऊपर खुद जुल्म किया, और जो शख्स बैत करके तोड़ देता है वो दरअसल अपना ही नुकसान करता है, और करीब है कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे बेनियाज कर दे। वस्सलाम। इस पर हुर बने यजीद रियाही रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे आपसे जंग करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि मुझे ये कहा गया है कि मैं आप अलैहिस्सलाम से जुदा न, यहाँ तक कि आपको कूफा ले जाऊं। लिहाजा अगर आप मेरे साथ चलना पसंद नहीं करते तो किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब करें जो न कूफा की तरफ जाता हो और न मदीना की जानिब, ताकि मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ख़त लिख सकूं और आप अलैहिस्सलाम भी चाहें तो यजीद को पैगाम भेज दें। शायद मामला अमन और आफियत पर ख़त्म हो जाए। मेरे नज़दीक ये तरीक़ा इस बात से कहीं बेहतर है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो जाऊं। फिर इमाम आली मकाम इमाम अल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने उज़ैब और कादिसिया की समत से हटकर बाएं जानिब सफ़र इख्तियार किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम उज़ैब से तकरीबन 38 मील के फासले पर थे और हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ हमरा चल रहा था। सुबह के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने मकाम अल-बैज़ा पर क़याम फरमाया, नमाज फ़ज्र अदा की, फिर अपने असहाब और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए, यहाँ तक कि ज़ुहर के वक्त सरज़मीन नैनवा पहुँचे। इसी दौरान उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के एक कासिद ने हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले एक ख़त किया जिसमें लिखा था, मेरा ख़त मिलते ही हुसैन बिन अली के साथ सख्ती करो और उन्हें ऐसी बेआबो गया ज़मीन पर ठहरने पर मजबूर करो जहाँ पानी मयस्सर ना हो। मैंने अपने एलची को तुम्हारे साथ मुकर्रर किया है ताकि वो तुमसे जुदा ना हो, जब तक वो मुझे ये इत्तला न दे दे कि तुमने मेरे हुक्म पर अमल कर दिया है। वस्सलाम। हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ख़त इमामुल हुसैन को सुना दिया। इमाम ने फरमाया, हमें नैनवा या गाज़रिया की तरफ जाने दो। हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने कासिद को मेरे ऊपर निगरान मुकर्रर किया है। इस मौके पर इमाम के असहाब में से हज़रत ज़ुहैर बिन क़ैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, खुदा की कसम, मुझे महसूस हो रहा है कि आगे हालात मज़ीद सख्त होंगे। या बिन रसूलिल्लाह, इस वक्त इन लोगों यानी हुर और उसके साथियों से मुकाबला करना उन लश्करों के मुकाबले में आसान है जो इनके पीछे आने वाले हैं। मेरी जान की कसम, उनके पीछे ऐसे लोग हैं जिनसे लड़ने की ताकत हम में नहीं होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़हीर, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं हरगिज़ पहल करके जंग शुरू नहीं करूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि सरज़मीन करबला पहुँच गए, जहाँ हुर बिन यजीद रियाही रज़ी अल्लाह अन्हु और उसके साथियों ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और काफ़िले को मज़ीद आगे बढ़ने से मना कर दिया। अक्सर तारीख़ी मसादिर में मज़कूर है कि इमाम आली मकाम इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के असहाब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को सरज़मीन करबला पहुँच चुके थे। ताहम मुअर्रिख़ दीनवरी ने आप अलैहिस्सलाम की आमद यकम मुहर्रमुल हराम बयान की है और इस कौल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हुर बिन यजीद रियाही रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, यहीं क़याम फरमाइए क्योंकि फ़ुरात करीब है, तो इमाम ने दरियाफ्त फरमाया, इस मकाम का नाम क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, करबला। इमाम ने फरमाया, ये कर्ब यानी रंज और बला की सरज़मीन है। मेरे वालिद इमाम अली अलैहिस्सलाम सिफ़ीन की जानिब जाते हुए यहाँ ठहरे थे और मैं उनके साथ था। उन्होंने इस जगह का नाम पूछा तो बताया गया। तब फरमाया कि यहाँ उनकी सवारियाँ उतरेंगी और यही उनके खून बहने की जगह है। लोगों ने हकीकत पूछी तो फरमाया, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला यहाँ क़याम करेगा। फिर इमामुल हुसैन ने फरमाया, यही हमारी क़यामगाह है, यही हमारा सामान उतरेगा और यही हमारी शहादत की जगह है।
और हुक्म दिया कि तमाम साजो सामान यहीं उतार दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। ये दिन पंजशंबा यानी जुमुरात 2 मुहर्रम था, जबकि एक रिवायत के मुताबिक 4 शंबा यानी बुध यकम मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन भी बयान किया गया है। रिवायत में आता है कि जब करबला में क़याम हुआ तो इमाम ने अपने फर्जंदों, भाइयों और अहले खाना को जमा किया। उन पर निगाह डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, ऐ परवरदिगार, हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और ख़ानदान हैं। हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमें हमारे नाना के हरम से दूर कर दिया गया और बनु उमैया ने हम पर जुल्म किया। ऐ अल्लाह, तू हमारा हक हमें अता फरमा और जालिमों के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। फिर आपने अपने असहाब की तरफ मुखातब होकर फरमाया, लोग दुनिया के गुलाम बन चुके हैं और दीन उनकी ज़बानों तक महदूद है। जब तक ज़िंदगी आसाइश में हो वो दीन का साथ देते हैं, लेकिन जब आजमाइश आती है तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के असहाब करबला में क़याम पजीर हुए। इसके बाद हुर बिन यजीद उर-रियाही रज़ी अल्लाह अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ख़त लिखकर इस सूरत हाल की इत्तला दी। ख़त मिलते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इमामुल हुसैन के नाम पैगाम भेजा, जिसमें लिखा था, अम्मा बाद, ए हुसैन, मुझे तुम्हारे करबला में क़याम की खबर पहुंची है। अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया के हुक्म से मैं उस वक्त तक न चीन से सूंगा और न सैर होकर खाना खाऊंगा जब तक तुम्हें कत्ल न कर दूं माअज़ल्लाह, या तुम्हें अपने और यजीद के हुक्म के आगे झुकने पर मजबूर न कर दूं। वस्सलाम। रिवायात के मुताबिक इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसे एक तरफ रख दिया और फरमाया, जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिश और रज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा पर तरजीह दी वो हरगिज़ फलाह नहीं पा सकते। इस पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के कासिद ने अर्ज़ किया, ए अबा अब्दुल्ला, क्या आप इस ख़त का जवाब नहीं देंगे? इमाम ने फरमाया, इस ख़त का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब जो बहुत जल्द उसे घेर लेगा। कासिद वापस जाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इमाम का ये कलाम सुनाया। ये सुनकर उसने फ़ौरन इमामुल हुसैन के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया और लश्कर जमा करना शुरू किया। चुनाचे उमर बिन साद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकर्रर किया गया और वो 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को 4000 सिपाहियों के साथ करबला पहुंचा। रिवायात में आता है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को 4000 कूफियों का सरदार बनाया था और उसे हुक्म दिया था कि वो रे की तरफ जाकर उस इलाके पर काबिज हो और वहां के लोगों से मुकाबला करे। इस मकसद के लिए पहले ही उसके नाम रे की विलायत का फरमान भी जारी किया जा चुका था। उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ कूफा से निकला और हम्माम आयुन के मकाम पर क़याम किया, जहां से वो रे की तरफ रवानगी की तैयारी कर रहा था। मगर उसी दौरान इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में क़याम की खबर सामने आ गई। जब इमाम ने कूफा की जानिब रुख किया तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को बुलाकर हुक्म दिया, पहले हुसैन बिन अली के साथ मामला निपटाओ, फिर अपनी विलायत की तरफ रवाना होना। उमर बिन साद इमामुल हुसैन के साथ जंग नहीं चाहता था, चुनाचे उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से दरख्वास्त की कि उसे इस जिम्मेदारी से माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उसने शर्त रख दी कि अगर वो जंग से बचना चाहता है तो रे की हुकूमत से भी दस्तबरदार हो जाए। इस दबाव के तहत उमर बिन साद को मजबूरन 4000 के लश्कर के साथ मैदान करबला की तरफ रवाना कर दिया गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस आजमाइश से बच जाए, मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उसकी कोई बात कबूल न की और उसे इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए भेज दिया। जब उमर बिन साद वहां पहुंचा तो उसने इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह दरियाफ्त की। इमाम ने पूरा वाक़या बयान फरमाया और वाज़ेह किया कि मैं अहले कूफा की दावत पर आया हूं, अगर अब उनकी राय बदल चुकी है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। उमर बिन साद ने यह बात उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ख़त के ज़रिए लिखी कि हुसैन वापस जाने पर आमादा हैं। जवाब में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया, हुसैन के सामने सिर्फ एक शर्त रखो कि वो यजीद बिन मुआविया के हाथ पर बैत करें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला करना है।
اور ساتھ ہی یہ سخت ہدایت بھی دی کہ امام اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ شہادت سے تقریباً 3 دن پہلے پیش آیا، چنانچہ ان پر پانی روک دیا گیا یہاں تک کہ پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اس حالت میں امام الحسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پھر امام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ رات کے وقت دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں تاکہ بات چیت ہو سکے۔ عمر بن سعد رات کو ملا تو امام الحسین نے فرمایا، میرے بارے میں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ پہلی یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، دوسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں خود اس سے معاملہ طے کروں، اور تیسری یہ کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دیا جائے جہاں میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار لوں۔ بعض روایات میں آخری 2 صورتوں کے ذکر سے انکار بھی کیا گیا ہے۔ عمر بن سعد نے یہ گفتگو سن کر دوبارہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور کہا، اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے اور امت کے لیے اتفاق کی راہ نکل آئی ہے۔ حسین نے 3 صورتیں پیش کی ہیں جن میں آپ کا مقصد بھی پورا ہو سکتا اور امت کی بھلائی بھی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اس خط سے کچھ متاثر ہوا اور بولا، یہ خط ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کے لیے عافیت بھی چاہتا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن اسی وقت شمر ذی الجوشن ملعون نے مداخلت کی اور کہا، کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ طاقت حاصل کر کے آپ کے مقابل آ جائیں؟ اگر وہ آج نکل گئے تو پھر کبھی آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ مجھے تو اس میں عمر بن سعد کی چال نظر آتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حسین کو مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر آپ چاہیں تو سزا دیں یا معاف کر دیں۔ یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد نے شمر ذی الجوشن کی رائے قبول کر لی اور عمر بن سعد کے نام اسی مضمون کا خط لکھا، اور وہ خط خود شمر کے ہاتھ بھیجا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ اگر عمر بن سعد فوراً حکم کی تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ شمر ذی الجوشن کو لشکر کا سردار بنا دیا جائے۔ اس نے لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا انہیں مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین بن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی میرے حکم کے مطابق صلح کر کے میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح سالم میرے پاس پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ انہیں قتل کر دو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کے جسدوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دو۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر نافرمانی کی تو فوراً لشکر کی کمان چھوڑ دو اور اسے شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ والسلام۔ شمر ذی الجوشن ملعون یہ خط لے کر روانہ ہوا تو اسے خیال آیا کہ حسین کے ساتھیوں میں اس کے پھپھی زاد بھائی حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کی اور ایک قاصد کے ذریعے ان تک یہ پیغام بھیجا، مگر انہوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہمیں امان دی جاتی ہے اور ابن رسول کو امان نہیں، ہمیں تمہاری امان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کی امان تمہاری امان سے بہتر ہے، تم پر بھی لعنت اور تمہاری امان پر بھی۔ جب شمر یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب اسی کے مشورے کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا، تم نے بہت برا کیا، مسلمانوں کا کلمہ متفق ہونے والا تھا، تم نے اسے ختم کر کے خون ریزی کا دروازہ کھول دیا۔ بالآخر امام الحسین بن علی علیہ السلام کو پیغام پہنچایا گیا، مگر آپ علیہ السلام نے صاف انکار فرما دیا اور فرمایا، اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذی الجوشن 9 محرم کو میدان میں پہنچا۔ اس وقت امام الحسین اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آپ کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا دوڑ کر آئیں اور وجہ پوچھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب علیہ السلام رو پڑیں تو امام نے انہیں تسلی دی۔
इसी दौरान शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मुकाबिल फरीक से बातचीत हुई। वहां से फौरन जंग का ऐलान किया गया। हजरत अब्बास वापस आए और इमाम को इत्तला दी। इमामुल हुसैन ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात हमें मोहलत दे दें ताकि हम इस रात को नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजार सकें। शिमर और उमर बिन साद ने मशवरे के बाद एक रात की मोहलत दे दी और वापस चले गए। इसके बाद इमाम आली मकाम इमामुल हुसैन ने अपने अहले बैत और असहाब को जमा किया और खुतबा दिया। फरमाया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, राहत में भी और मुसीबत में भी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें शराफत नबूवत अता फरमाई, हमें समात, बसारत और दिल अता किया ताकि हम तेरी आयात को समझ सकें। तूने हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ अता की। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर फरमाया, मेरे इल्म में तुमसे बढ़कर वफादार और नेक साथी किसी के नहीं, और ना ही मेरे अहले बैत से ज्यादा साबित कदम कोई और हैं। अल्लाह तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है। मैं तुम सबको इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में चले जाओ और जहां पनाह मिले वहां पहुंच जाओ। मेरे अहले बैत में से हर एक किसी न किसी का हाथ पकड़ ले और मुख्तलिफ इलाकों में बिखर जाओ, क्योंकि दुश्मन सिर्फ मेरा तालिब है। जब वो मुझे पालेगा तो दूसरों को छोड़ देगा। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के भाइयों, बेटों, भतीजों और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हु के बेटों ने अर्ज किया, वल्लाह हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह हमें आप अलैहिस्सलाम के बाद जिंदा ना रखे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने बनु अकील से फरमाया, तुम्हारे बुजुर्ग मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं, वही तुम्हारे लिए काफी हैं। तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। मगर उन्होंने अर्ज किया, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम अपने सरदार को छोड़कर जान बचा लाए, बल्कि वल्लाह हम अपनी जानें, अपनी औलाद और अपना माल सब आप पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह अन्हु ने जोशीले अंदाज में कहा, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं आपके सामने लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आपकी हमशीरा सईदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा बेकरार होकर रोने लगी तो इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और वसीयत फरमाई, ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरी शहादत पर कपड़े ना फाड़ना, सीना को भी ना करना और बुलंद आवाज से नौहा और फरियाद से बचना। ये वसीयत फरमाकर आप अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर तशरीफ लाए और अपने असहाब को जमा फरमाया। फिर सारी रात नमाज तहज्जुद, दुआओं और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहे। ये आशूरा की रात थी। सुबह यौम आशूर बरोज़े जुमा नमाज फजर से फारिग होते ही उमर बिन साद लश्कर लेकर मुकाबले के लिए आ पहुंचा। उस वक्त इमामुल हुसैन के साथ कुल बेहतर असहाब थे, जिनमें 23 सवार और बाकी पैदल थे। इमाम ने भी अपने असहाब की सफबंदी फरमाई। उमर बिन साद ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से पर एक अमीर मुकर्रर किया। उनमें से एक दस्ते की क़यादत हुर बिन यजीद रियाही रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द थी, जो पहले 1000 के लश्कर के साथ सामने आया था और इमाम के साथ साथ चलता रहा। उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत जाग चुकी थी। अपने साबका तर्ज अमल पर नादिम हुआ। अचानक घोड़ा दौड़ाता हुआ इमामुल हुसैन के लश्कर ने आ मिला और अर्ज किया, मेरी इब्तिदाई गफलत और आपको वापस जाने से रोकने का नतीजा आज हमारे सामने है। वल्लाह मुझे अंदाजा न था कि ये लोग आपके खिलाफ इस हद तक बढ़ जाएंगे और आपकी कोई बात न मानेंगे। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं हरगिज़ आपका रास्ता न रोकता। मैं अब तौबा करके हूं। मेरी तौबा यही है कि मैं आपके साथ क़िताल करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दूं। चुनाचे वो मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। इमाम आली मकाम इमामुल हुसैन घोड़े पर सवार हुए और बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो ताकि मैं तुम तक हक की नसीहत पहुंचा दूं और अपने आने की वजह बयान कर दूं। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लो और मेरी बात को सच मान लो और मेरे साथ इंसाफ करो तो यही तुम्हारी फलाह है, और फिर तुम्हारे लिए मेरे कत्ल का कोई जवाज नहीं। और अगर तुम मेरा उज़्र कबूल ना करो तो तुम सब मिलकर अपने फैसले पर कायम हो जाओ और अपने शरीकों को भी जमा कर लो। फिर मेरे साथ जो करना है कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो।
یہ وہی کلمات ہیں جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے تھے۔ جب یہ کلمات خیموں تک پہنچے تو خواتین ضبط نہ کر سکیں اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں سمجھا کر خاموش کریں، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے درست کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لاؤ۔ پھر جب خواتین خاموش ہو گئیں تو امام الحسین نے ایک نہایت درد انگیز، بلیغ اور نصیحت آموز خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، اپنے دلوں میں غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم میرا خون بہاؤ اور میری حرمت پامال کرو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں جو رسول اللہ کے چچا زاد، وصی اور امیر المومنین تھے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات حق ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم پوچھ سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھو، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ باتیں تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ تم بدلے میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد امام علی مقام امام الحسین نے رؤسائے کوفہ کے نام لے کر انہیں پکارا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم ہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط لکھے تھے؟ یہ سن کر سب نے انکار کر دیا اور کہا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ امام الحسین بن علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی سرزمین کی طرف چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن حاصل ہو۔ اس پر قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے چچا زاد عبید اللہ بن زیاد کے حکم کو کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بھی تم یہی کہتے ہو؟ واللہ میں ہرگز اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر امام الحسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور فرمایا، اگر تم اس ظلم سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تمہیں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ مگر ان لوگوں نے زہیر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا، ہم تم سب کو قتل کر کے اس کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت زہیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فرمایا، اے ظالموں، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے حسین بن علی سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کے حقدار ہیں۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کم از کم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب گفتگو طول پکڑ گئی تو شمر ذیلجوشن ملعون نے پہلا تیر چلایا اور یوں جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد حر بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ، جو توبہ کر کے امام الحسین کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے، آگے بڑھے اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، تم برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے انہیں اس لیے بلایا تھا کہ آنے کے بعد انہیں قتل کر دو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور آج تم ہی ان کے خون کے پیاسے ہو۔ تم انہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اللہ کی وسیع زمین میں کہیں اور چلے جائیں جہاں انہیں اور ان کے اہل بیت کو امن مل سکے۔ تم نے انہیں قیدیوں کی طرح گھیر لیا ہے اور دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دیا ہے۔
जिसे यहूदी, नसरानी और मजूसी सब पीते हैं, जबकि हुसैन बिन अली और उनके अहले बैत प्यास से बेहाल हो रहे हैं। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद के साथ निहायत शर्मनाक सलूक किया। अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन प्यासा रखे अगर तुमने तौबा न की। इस पर उन पर भी तीरों की बारिश की गई। वो वापस आकर इमामुल हुसैन के सामने डट गए। फिर बाकायदा तीर अंदाजी शुरू हो गई और सख्त जंग छुड़ गई। दुश्मन के भी कई आदमी मारे गए और इमामुल हुसैन के रुफ़क़ा भी शहीद होने लगे। हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बेमिसाल बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया और आखिरकार शहादत पा गए। इसी दौरान हज़रत मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह अन्ह ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्ह उनके पास आए और फरमाया, आपके लिए जन्नत की खुशखबरी है। अगर मुझे यकीन होता कि मैं भी आपके बाद फ़ौरन शहीद होने वाला हूं, तो मैं आपसे आपकी वसीयत दरियाफ्त करता। उन्होंने कहा, हाँ, एक वसीयत करता हूं। फिर इमामुल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक जिंदा रहो इनकी हिफाजत करना। इसके बाद शकी व बदबख्त लईन शिमर ज़िल जोशन ने चारों तरफ से इमाम और उनके रुफ़क़ा पर हमला कर दिया। इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब ने बेमिसाल बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वो जिस तरफ हमला करते मैदान साफ हो जाता था।